سے اتنی محبت کر رہے ہیں، ان کے حق میں اتنی نعرہ کر رہے ہیں کہ جتنا محبت اور جتنی محبت انہیں اللہ سے ہونی چاہیے تھی، تو یہ محبت اللہ سے نہ کر کے کسی اور سے کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے دونوں کا فرق بتا دیا۔ ایمان کا دعویٰ کرنا اور ہے، پوری توجہ، لیکن اگر ایمان ہے تو پھر اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جو باطل رہنما ہیں انہیں آگے کر کے جب تم ان سے اتنی محبت کرنے لگ جاؤ جتنی محبت تمہیں اللہ سے کرنی چاہیے، تو قرآن مجید اس بات کی مذمت کر رہا ہے کہ صاحبان ایمان نہیں ہے۔ آگے چل کے صاحبان ایمان کی علامت بتائی، اور صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، صلوات بھیجیے محمد والے صلی اللہ محمد والے۔ یہ مرغہ نازک ہے، بات میں چھوٹی موٹی محبت نہیں کرتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی اللہ سے محبت بہت شدید ہے۔ اب ٹٹولو اپنے دل کو، اگر ہم صاحبان ایمان ہیں تو کیا اللہ سے محبت ہے؟ محبت ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہی سکھایا۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ڈر کے معنی کچھ اور ہے، اس ڈر کے معنی تقویٰ ہے، اس ڈر کے معنی اللہ کو اہمیت دینا ہے، اس ڈر کے معنی اسے عظیم جاننا ہے، اس ڈر کے معنی اسے اکبر قرار دینا ہے، اس ڈر کے معنی ہمیشہ اس کا لحاظ ہونا ہے، اس کا احترام ہونا ہے، وہ ہے ڈر، وگرنہ اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ سے شدید محبت ہو۔ پھر توجہ آپ یاد رکھنا چاہتا ہوں، تمہارے دل میں اللہ سے شدید محبت ہو۔ تو ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ ہمارے دل میں اللہ سے شدید محبت ہے تو شاید ہر شے سے محبت نظر آ جائے۔ اگر کسی سے محبت نظر نہ آئے تو اللہ کی ذات گرامی، میری توجہ، شاید کسی سے محبت اگر نہ نظر آئے تو وہ اللہ ہی کی ذات گرامی ہو جس سے ہمیں محبت ہو۔ اور محبت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بس میں اپنی بات کو سمیٹ گیا۔ محبت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ محبت نہ ہونے کی وجہ اس کی شناخت نہ ہونا۔ کوئی انجان شخص آپ کے سامنے سے گزر جائے، ہم آپ سے کہیں آپ اس کو چاہتے ہیں، آپ کہیں گے میں جانتا ہی۔ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، آپ کہیں گے میں جانتا ہی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ محبت کرنے کے لیے، نفرت کرنے کے لیے، دونوں کے لیے پہلے شناخت چاہیے، دونوں کے لیے پہلے پہچاننا ضروری ہے۔ اب کہنے والے ظاہر جوانوں کا مجمع ہے، یقین کہیں گے قبلہ محبت کرنے کی چیز ہوتی ہی نہیں، محبت اپنے آپ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے محبت کیسے ہمارے اندر جب دل میں ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ پوری توجہ۔ تو میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں کہ محبت ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی، یہ بات غلط ہے۔ نہیں، محبت کے لیے، کسی کو بھی چاہنے کے لیے اس کے مقدمات ہم خود فراہم کرتے ہیں،
उसकी तैयारियां हम खुद करते हैं, रास्ते हम खुद बनाते हैं, फिर हम कहते हैं मोहब्बत हो गई। वरना अगर किसी की शनाख्त ही ना हो, किसी से ताल्लुक ही ना हो, किसी से वास्ता ही ना हो, किसी को हम जानते ही ना हो, तो उससे मोहब्बत होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब अगर अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में अपने आप पैदा हो जाए तो पहचानो कि मैं ज़ईफ और कमजोर हूँ, मैं नादवा हूँ, वो रहमान और रहीम है। वो है कि मैं अभी दुनिया में आया भी नहीं था तो उसने मुझे देखने के लिए आंखें दे दी, सुनने के लिए कान दे दिए, बोलने के लिए ज़बान दे दी, और मैंने दुनिया में कदम बाद में रखा। जो खुराक आज भी साइंस ने कहा बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन होती है, वो कौसर तस्लीम मेरे आने से पहले ही माँ के सीने में छलका दी। तो जिसने जो कुछ मुझे चाहिए था वो पहले से बिन मांगे दे दिया, और वो भी ऐसा दे दिया कि जिसकी दुनिया मिल करके भी कोई कीमत नहीं लगा सकती। ना आंखों की कोई कीमत है, ना हाथों की कोई कीमत है, ना कानों की कोई कीमत है, ना इस जिंदगी का कोई मोल है, कोई कीमत है। तो जो बिन मांगे इस बंदे को पर बनाए मोहब्बत इतना कुछ दे दे, और फिर ये बंदा उसी की नेमतों को उसी के गुनाहों में इस्तेमाल करता रहे, मगर फिर भी न वो पानी बरसाना बंद करे, न दाना उगाना बंद करे, न रिस्क देना बंद करे, न पालना बंद करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूँ तो सन 61 हिजरी में एक बहुत बड़ा हादसा रोनमा हुआ था कि सादात के ऊपर ख़ास तौर से कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है, तो तमाम अंबिया के वारिस वही थे। और चूँकि यजीद एक फासिक और फाजिर इंसान था, वो अपनी मनमानी को आम करना चाहता था, लिहाजा उसने बैअत का मुतालबा किया। तो मौला हुसैन ने यजीद से ये कहा कि ये हरगिज़ नहीं हो सकता है कि हक़ कभी बातिल की इताअत नहीं करता। हक़ हक़ है और बातिल बातिल है। परवरदिगार ने इस दुनिया को जो बनाया है तो कानून भी उसी ने दुनिया के लिए बनाया है, इंसानों के लिए कानून बनाया है, और किसी भी शख्स को ये हक़ हासिल नहीं है कि वह अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर करे, इसलिए कि अल्लाह ने उसके लिए एक लाए अमल बनाया, एक दस्तूर बनाया, उसी के मुताबिक उसे ज़िंदगी बसर करना है। तो वैसे तो मौला हुसैन को मोहसिन इंसानियत कहा जाता है कि यजीद ऐसा फासिक और फाजिर इंसान था कि वो शराब में धुत रहता था और उसे माँ बहन की कोई तमीज़ नहीं थी। वो रिश्तों को ख़त्म करना चाहता था और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर करना चाहता था। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले में खड़े हुए और यजीद से ये कहा कि बहन का रिश्ता बाकी रहेगा, माँ का रिश्ता बाकी रहेगा, बेटी का रिश्ता बाकी रहेगा। मैं ज़िंदा हूँ तो इस बात का आप ख़्याल रखें कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगा, और मैं चला भी जाऊँगा ऐसी तारीख़ रकम करके चला जाऊँगा कि रिश्ते बाकी रहेंगे। यही एक बात है कि आज हर कौम में, हर फ़िरक़े में, सिखों के यहाँ या हिंदुओं के यहाँ या दीगर अक़वाम के यहाँ जो है रिश्ते बाकी हैं, इसीलिए उन्हें मोहसिन इंसानियत कहा जाता है। तो अज़ादारी की सूरत में हम ये अय्याम जो है गुज़ारते हैं। पहली मुहर्रम से जो है हम मुसलसल जो है ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं और इसे अज़ादारी कहते हैं। अज़ादारी का मकसद ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की याद मनाने को अज़ादारी कहा जाता है। मौला हुसैन जो है करबला के मैदान में बेआब हो गया, रेगिस्तान में, तपते हुए रेगिस्तान में जा कर के बच्चों के साथ जो है क़याम किया उन्होंने ज़ुल्म के ख़िलाफ़, और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने जिहाद किया है। और उनमें कमसिन बच्चे भी थे और नौजवान भी थे और बीबियाँ भी थीं, उनको असीर करके ले जाया गया। और ये ज़माना वो ज़माना है कि जहाँ जो है करबला से कूफा और कूफा से शाम तक की मनाजिल 1449 मील का सफ़र है। उस सफ़र में शहज़ादियों को जो है वो असीर करके ले जाया गया। लिहाजा हम उनकी औलाद हैं और हमें गम दामनगीर हो जाता है। लिहाजा हम अपने उन मोहसिनों की शहादत की याद को मनाते हैं। और आज के दिन की ख़ुसूसियत यह है कि मौला हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए थे, और उसके बाद जो है 30 मुहर्रम को हम उनका 20वां मनाते हैं। और ये जुलूस अज़ा बरामद होता है, अलम बरामद होता है, ताज़िया बरामद होता है, और ख़तीब लोग जितने भी हैं वो फ़लसफ़ा शहादत पे रोशनी डालते हैं।
تو ہر سال یہی پروگرام ہمارا ایسا رہتا ہے.